ہم پاکستانی جو ہیں وی آر ویری ریزیلینٹ پیپل اینڈ ود اے ویری اسٹرانگ فیتھ انفلنچنگ فیتھ ہے بالکل ایمان ہے ہمارا. ایمان ہے وین اٹ کمس ٹو انڈیا وی آر ناٹ ڈیوائڈیڈ وی آر یونائٹڈ. وی آر یونائٹیڈ دس از اے ٹائم ٹو رائز ابو دا پولیٹیکل انٹرسٹ لائکنگس اینڈ ڈس لائکنگس. اپوزیشن ہے اس میں بھی سین وائسز ہیں. جی بالکل ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنا سچ شام تک لے کے بیٹھے رہیں اور انڈیا کا جھوٹ صبح صبح ہی بک جائے. یہ جو کلبھوشن جادیو کا ذکر کیا تو یہ ایک لیونگ ایویڈنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، آپ کا دشمن اگر کم ظرف ہے، کمزور ہے، آپ سے جنگ کے میدان میں ہار چکا ہے تو وہ پھر اس جنگ ہارنے کے بعد کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈے گا اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. اور یہی کچھ ہمیں بلوچستان میں اسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پر بدامنی اور جو دہشت گردی کی ریسنٹ لہر ہے اس میں ملوث ہاتھ جو ہے ہمارے دشمن کا یعنی ہندوستان کا ہے. آج اسی حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت مدلل انداز میں ثبوت، باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہیں وہ پیش کیے گئے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ جتنی اسپانسرشپ ہے دہشت گردی کو یہ تمام کی تمام انڈیا سے ہو رہی ہے. آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اور رانا صاحب، میں بلا کسی تمہید کے یہ سوال کروں گا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دشمن جو ہے وہ ملوث ہے، یعنی وہ بیرونی ہاتھ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انڈیا ہے، ہندوستان ہے اور وہی دشمن ہے جو ہم سے میدان جنگ میں ہار چکا ہے، تو اب اور ثبوت بھی موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اب تو آنی ہاتھ کے ساتھ ہی پھر انڈائریکٹ طریقے سے نمٹا جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ ہمارے سیکرٹری داخلہ بھی تھے جی. تو انہوں نے وہ سارا ایک سلسلہ عوام کے سامنے رکھا کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، اسپانسر کرتا ہے، اور کس طرح اس نے یہاں پہ اپنے ایجنٹس بنائے ہوئے اور وہ کون لوگ ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ بڑی کمپریہنسو آج پریس بریفنگ تھی جی. اور اس پریس بریفنگ میں بڑے آئی اوپننگ فیکٹس جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی. وہ ڈیلیگیشن جو دنیا بھر کا دورہ کرے گا اور پاکستان کا نقطہ نظر ورلڈ کیپٹلز میں رکھے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے ٹیپ کرے گا، سول سوسائٹی وہاں کی لیگل فورا جو ہیں وہاں پہ بات کرے گا کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کر رہا ہے، دہشت گردی کروا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اثاثہ، پاکستان کا دل، گو کہ آبادی میں کم ہے، رقبے میں بہت بڑا ہے، جغرافیکلی آدھا پاکستان ہے. جی، مالا مال ہے معدنیات سے. ہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان میں پراسپیرٹی ہو، بلوچستان میں امن ہو. یہ آج سے نہیں ہے، ڈیکیڈز اولڈ ایک کیمپین ہے انڈیا کی جو وہ بلوچستان میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے لانچ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کا ایک واقعہ ہوتا ہے جی، اور اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ پایا جاتا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ وہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ اس کی کارستانی ہے، اس کا کیا دھرا ہے، اس نے یہ ظلم کیا. پھر آپ دیکھیے خزدار والا واقعہ، جی بچوں کے اوپر حملہ، بہت ہی دل دکھانے والا، ہارٹ رینچنگ انسیڈنٹ ہے یہ کہ آپ نے سول پاپولیشن کو، بچوں کو نشانہ بنایا. سب وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. سفاکیت کی انتہا ہے کامران. بے شک. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان، جیسے آپ نے کہا کہ جی آنی ہاتھ سے تو ہم نے نپٹا ہے. کل مودی کی چیخیں راجستھان میں سنائی دی تھی. وہ کیوں ایسی باتیں کرتا پھر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان نے اس کے تمام خواب جو ہیں مودی کے، آر ایس ایس کے، ہندوتوا کے، اس ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے جو ہندوستان میں کار فرما ہے، وہ سارے خواب چکنا چور کر دیے کہ جی میں اس خطے کا تھانے دار بن جاؤں گا، پاکستان ایک سب سروینٹ کنٹری ہوگا یہاں پہ اور میں رول کروں گا. گریٹر بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں، گریٹر بلوچستان کی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ. دے ہیو فارگاٹن دیٹ پاکستان کی جو قوم ہے، ہم پاکستانی جو ہیں وی آر ویری ریزیلینٹ پیپل.
and with a very strong faith, unflinching faith है, बिल्कुल जी, ईमान है हमारा। ईमान है। और यही वजह है कि हमने 10 मई को जो जवाब दिया है, इंडिया तो समझ रहा था ये कमज़ोर मुल्क है, पैसे इनके पास नहीं है, एक अंदरूनी तौर पे डिवाइडेड है, लेकिन उसका जवाब उसको मिल गया कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी आर नॉट डिवाइडेड, वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। अब आप देखें कि असल बात जो है कि हमने इंडिया के इस घुनावने चेहरे को दुनिया के सामने किस तरह एक्सपोज करना है, अब ये हमारा एक टेस्ट है कामरान। बिल्कुल ठीक। वो डिप्लोमेसी हम किस तरह लॉन्च करते हैं, हम दुनिया को क्या बताते हैं, किस अंदाज में बताते हैं, किस तरह कन्विंस करते हैं, अब ये हमारी वो स्किल आएगी डिप्लोमेटिक। बिल्कुल ठीक। हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं ये अब उनका काम है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको दुनिया के सामने रखते हैं, और कन्विंसिंगली। ये नहीं सिर्फ आपने गए तकरीर की, राउंड टेबल कर लिया और वापस आ गए, आपको कन्विंसिंगली दुनिया को बताना है, कन्विंस करना है। इस वक्त ये सारी इंटरनेशनल सपोर्ट जो है आपके साथ है, आपने उसको इंडिया की तरफ जाने से रोकना है, क्योंकि इंडिया अपने डायस्पोरा को भी टच कर रहा है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया ये इनिशिएटिव ले चुका है सर, ले चुका है। बड़ी प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी है। राणा साहब, आपने डायस्पोरा की बात की, लेट मी ऐड इनटू इट कि ये कहा यह जा रहा है कि जब से 10 मई वाला जो हमारा जवाब हुआ है उसमें जो हमारी इमेज बिल्डिंग हुई है, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ जहाँ पर मौजूद है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पर वो उनके जज्बात शायद हमसे ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली, वो हमसे ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, एक्साल्टेड फील कर रहे हैं। जी, और अब हमें उन्हें ऑन बोर्ड लेना है। हाँ। इसमें एक और चीज़ देखें, ये जो डेलीगेशन कंपोज हुआ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि देखें मेरी ज़ाती राय है, मैं आई एम नो बडी टू डिक्टेट द गवर्नमेंट, बट एक एडवाइस कह सकते हैं कि देखें इसके अंदर पॉलिटिशियंस तो आपने रख लिए और वो भी हुकूमती, आप वो लोग भी शामिल करें जो हुकूमत में नहीं है। ठीक है, अब मैसेज कि ये पूरी कौम का एक डेलीगेशन है, या जितने इसके बाद भी अगर कोई डेलीगेशन तरतीब देता है या दिया जाता है, ठीक है, उसके साथ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स जो हैं आपके, ठीक है, आपके डिप्लोमेट्स, आपके रिटायर्ड जनरल्स जिनको सिक्योरिटी सिचुएशन का पता है, दोज हु कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एंड पुट फॉरवर्ड पाकिस्तान केस इन ए कन्विंसिंग मैनर, उनको भी आप इसमें लेके जाएं। बिल्कुल ठीक। देखें पॉलिटिशियंस की प्रोफेशनल्स जो हैं जी वो होने चाहिए, ये एक प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल काम है, डिप्लोमेसी है ना जी। ये पार्लियामेंटेरियंस उसको हैंडल तो कर लेंगे पॉलिटिकली, बट डिप्लोमेटिकली नहीं कर सकेंगे। ये एक डिप्लोमेट ही बताएगा आपको कि किस तरह हमने बात करनी है, किस किस एरिया को टच करना है, कौन से थिंक टैंक्स हैं जो मैटर करते हैं। फिर आपका अगर कोई रिटायर्ड जनरल है जो इस चीज़ को समझता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, उसको आप शामिल करें इसके अंदर। अच्छा राणा साहब, इसमें वैसे ये इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने भी इसमें ख़ास इसमें जो है ना अपना कंसर्न शो करते हुए, अभी ख़बरें यही हैं कि जी नेक्स्ट वीक वो मिडल ईस्ट भी जाएंगे, ईरान भी जाएंगे और सेंट्रल एशिया की कुछ ममालिक हैं वहाँ पर जाएंगे। इन एडिशन टू दैट डेलीगेशन, वो जो बनाया हुआ है बिलावल साहब की सरबराही में, वो तो है ना अमेरिका, यूके और यूरोप, और उसमें जाएगा। अच्छी बात है, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी, उन्होंने करना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, वो जाएंगे, वो किसी थिंक टैंक में नहीं जाएंगे, वो किसी डायस्पोरा से वो बात करेंगे, खिताब कर सकते हैं, बट वो करेंगे हेड टू हेड बात। ठीक है, यहाँ से जाएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जहाँ वो विज़िट करें उनसे बात करेंगे। फॉरेन ऑफिस लेवल पे आपके वज़ीर ख़ारजा डील करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं डेलीगेशन की, हाँ, तो डेलीगेशन जो है वो हर सतह पे होता है। प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल जाना चाहिए, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एज ए लीडर, लेकिन जो डेलीगेशंस आप भेज रहे हैं, आप उसकी तरतीब ऐसे कीजिए कि पता चले कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ their associations, political associations. This is a time to rise above the political interest, likings and dislikings. बिल्कुल ठीक है। और सर इसमें जो हमारा अपोजिशन है उसमें भी सेम वॉइसेस हैं। जी जी बिल्कुल हैं, जिनको हम मतलब है कि इसके लिए वो आ सकता है और ये जो कंसर्न है दूर हो सकता है। देखिए एक मिक्स एंड मैच की बात है ना, आपके पॉलिटिशियंस हो, दोज हु कैन स्पीक देयर, बिल्कुल ठीक,
वैसे तो आप किसी को भी ले जाएं ना, बात यह है कि आपने वहाँ पे बात करनी है, बोलना है, आपको कन्विंसिंगली वकालत करनी है, वकालत करनी है, तो अपना मुकदमा लड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस अंदाज में बात करनी है. सही. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंड स्ट्रेसिंग कि हमारा जो डेलीगेशन हो वो ऐसा हो, कॉम्पैक्ट हो, इम्प्रेसिव कि वो उसमें वो जब बात करे तो उसमें ऑडेसिटी भी हो, ब्रेविटी भी हो और क्लैरिटी भी हो. बिल्कुल ठीक है, ताकि कन्विंस कर सके, कन्विंसिंगली आप आगे अपना मुकदमा जीत सके. बिल्कुल ठीक है. और राना साहब वही बात हमने एक दफ़ा पहले भी ये इसमें की थी एक और पॉडकास्ट में भी, कि अपना सच बेचना ज़रूरी है. और ये जो एपिसोड गुजरी है इसमें ये हकीकत है कि हमने जिस ज़िम्मेदार अंदाज में, ज़िम्मेदाराना अंदाज में हमने बिहेव किया है, जो हमने, चाहे वो जंग है या जंग के बाद की सूरत हाल है, प्री जंग या पोस्ट जंग है, उसमें हमने बड़ा ज़िम्मेदाराना रवैया रखा है. तो ये चीज़ जो है अक़वाम आलम के सामने आनी चाहिए. आपको अपना मुकदमा लड़ना है, और मुकदमा उसी सूरत में लड़ा जाता है जब आपके पास एक अच्छा वो मौजूद हो मवाद, और वो आपके पास है, और इंडिया ने खुद प्रोवाइड कर दिया है. बिल्कुल ठीक. अब हमने किस तरह खेलना है ये अब हम पे है. वो जो पोस्ट सीज फायर सिचुएशन है उसको कैश इन करना है उस पर. ये नहीं कि ये मौका गुजर गया फिर इंडिया उसी तरह एक ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, दुनिया को अपने साथ मिलाएगा, तो पाकिस्तान फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में कि सारी दुनिया का जो ऑन स्लॉट है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा, वो टेररिज्म को इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा. दूसरी बात, आपने कहा कि सच को हमें लेके आना है, तो बात पहले भी होती रही है कि आपने जब तक अपना सच उतनी ताकत से नहीं बोला तो आप तो वो झूठ प्रीवेल कर उसका जाएगा, झूठ बिक जाएगा. ये ना हो कि हम अपना सच शाम तक लेके बैठे रहें और इंडिया का झूठ सुबह सुबह ही बिक जाए, मार्केट में बिक चुका हो. तो ये हमें इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स अ नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द डे. बिल्कुल ठीक है. पहली बात तो ये है कि फितनातुल हिंदुस्तान, अगर यहाँ से कोई शख्स किसी भी हवाले से उसका किसी भी स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ है और वो हिंदुस्तान का अलाकार बन रहा है, तो वो पाकिस्तानी नहीं है. बिल्कुल ठीक. ही हैज़ नो स्पेस ऑन दिस सॉइल. वो फितना हिंदुस्तान वो है. उसके लिए हमारी अफवाज जो है वो काम कर रही हैं, दिन रात काम हो रहा है. देखना यह है कि दुश्मन क्या क्या हरबे इस्तेमाल करता है, उसका तोड़ भी करना है, और हो रहा है. तो सूनर और लेटर वी विल विन दिस वॉर इंशाल्लाह, विल सेव पाकिस्तान. एक बात तो ये है. दूसरा, बलूचिस्तान के हवाले से जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. अब कुलभूषण जाधव की बात भी आप देखें, सिर्फ ये कुलभूषण ही नहीं था, बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, जिनको ट्रैक किया गया इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में, उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो कौन है, किसके इमा पे ये सब कर रहे हैं, और उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, कौन फंड कर रहा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो अब ओपन है, ओपन सीक्रेट है. जो आप बात कर रहे हैं ना कि दुनिया को किस तरह बताना है क्या, देखिए एक तरफ तो आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी है. यू हैव टू टेक अप दिस मैटर एट द सिक्योरिटी काउंसिल. ये जो कुलभूषण जाधव का जिक्र किया, तो ये एक लिविंग एविडेंस है, ये एक लिविंग एविडेंस है. एक वो शख्स जो कि रंगे हाथों पकड़ा गया, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसने बता दिया कि जी हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा था और मैंने क्या क्या तकरीबकारी की, जिसकी बिना पर उसको, आपको पता है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उसके लिए अनाउंस हुई भी है. और फिर इंडिया जो है वो अब वो इधर उधर उसकी कोशिश किया है कि जी इसको किसी तरीके से, मुझे लग रहा है कि इस तरह के कुछ और कुलभूषण जाधव अनकरीब सामने आएंगे. मतलब आने से मुराद यह है कि जो हैं उनको हम एक्सपोज करें और उनको फिर ताकि दुनिया देखे. बिल्कुल, फिर दुनिया देखे कि देखो जनाब हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, ये वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन ने भेजे और इनका काम पाकिस्तान में तकरीबकारी कर. तो अल्लाह करे जी कि ये इस चीज़ का जल्द अज जल्द जो है वो ये इसके जो गुड रिजल्ट्स हैं वो सामने आ सकें. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.